Good evening, everyone, and I welcome you all to this lecture series and discussion on the book Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire, one of the greatest revolutionary writers of his times, who actually calls upon the entire humanity to just end the relationship of oppressor and the oppressed. And my colleague has already given some very important insights on the book, and there might be some thing that I in my part which might come in a repeated sense, but there will be something that I will try to bring some new insights. So ये किताब 1971 में जो अलग अलग लोगों ने इस किताब को लिखा है at different times. So I read the book which was actually printed in 1971 for the first time, and Donald Macedo was the one who wrote the introduction to the book that I read, and he writes something that actually influences us to the core. जैसे वो बुक लिखते हैं कि इस बुक को जब पहली बार आई तो उस समय का जो ब्राज़ील का समाज था वह एक तरफ से दो फ्रंट पे लड़ रहा था. एक तो ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ और जो हमारा कल्चरली कोलोनाइज्ड एग्जिस्टेंस है उसके खिलाफ दोनों फ्रंट पे लगातार उसकी लड़ाई जारी थी ब्राज़ील के समाज की. और वैसे में जो लिटरेसी का प्रोग्राम था, क्योंकि ब्राज़ील कमोबेश हमारे जैसी अर्थव्यवस्था है और जिस वक्त पे हम आज़ाद हुए उसी के आसपास उसकी भी आज़ादी हुई, तो एक तरफ का जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है उसमें उन समाज में वेयर दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग कॉलोनाइज्ड, वहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम्स जो होंगे वह किस तरह के होंगे, बिकॉज अ मच लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दोज countries, of those nations are actually dehumanized, which our friend has discussed. So how to deal with the project of literacy, because education is much higher thing and that comes later. In the first phase the government focuses on the literacy. So he debunks the idea of literacy from the top, which we follow in our country, that the idea of literacy comes from the top. He rather gives an idea of literacy from the bottom. The very lived experiences of the oppressed must help the policy makers in shaping the idea of literacy. What it counts to be a literate person, what does it take to begin with a literacy program? That must come from the lived experiences of the oppressed communities. And Paulo Freire was one of the individual from the oppressed community. He faced hunger in his early life, and he was subjugated to almost all level of exploitation that an individual from the oppressed community suffers from. So he was writing through his own existential crisis, through his experiences that he had actually suffered in his childhood, in his adolescence, and then after in his young age. So what does it take to actually go ahead with literacy program in societies which are colonized and which are actually suffering from authoritarian crisis? So he brings in the concept of this banking education that we talked about, our friend talked about. What does it take to, and whose vested interest actually lies in bringing this banking education? The interest of the capitalist, the interest of the dominant section, because the entire knowledge, what ought to be called as legitimate knowledge, that is actually defined by the dominant power, the dominant groups. What curriculum is formal curriculum, what should be taught in the universities, and we all grasp these problems today. We all come across, being the first generation learner from Bahujan community in the university, we come across these challenges that when we are not able to relate to the formal curriculum, we see a deep crisis within ourselves. We feel like turmoil within ourselves, that why is this that
my own experiences are missing in the formal curriculum. While on the other hand, the dominant communities, they are easily able to relate to the practices of the classroom, to the formal curriculum and the pedagogy to which the entire teaching community has been subjugated or limited. So, Paulo Freire actually gives us insight or some tools to understand our own domination. That we are not being dominated simply by the dominant section, but there are forces that are so deeply ingrained within ourselves that we have actually internalized those tools of our own oppression. And one thinker which actually gives a concept of hegemony, Antonio Gramsci from Italy, the cultural Marxist. He was not more of the Marxism that arose in 19th century. He actually took Marxism to different level and brought the question of culture to its utmost importance in understanding the relation of the dominant and dominated. So Gramsci gave the concept of hegemony, that there are cultural tools, cultural processes beyond economic sphere which actually shapes our subjugation for lifetime. And if we are to liberate, if we are to bring a change, if we are to humanize ourselves, and not humanize ourselves, but humanize also the entire humanity, or even the oppressors need to be humanized. And if this has to be done, then definitely the first thing is to understand critically the tools of our own oppression. That what are the tools through which we are being constantly oppressed. And in this context, I find a deep relationship between Gramsci, Paulo Freire, and in Indian context, I feel Baba Saheb Ambedkar, Dr. Lohia, and Jyotiba Phule. That he gave us the tool to understand our own subjugation. Gulangiri is nothing short of a very celebrated text in our country, but still it is not a part of the formal curriculum. And he gives tools to understand the order of myth. How does a myth produces our own subjugation through the philosophy of karma? Through the philosophy of karma, how does one feel that he is born to be subjugated and he is born to realize that fatalistic attitude, and not only realize but embrace and live with that fatalistic attitude for the whole life. Like I met one student from Musahar community in Bihar. I asked him that why did you leave your school after +2? And it's a historic achievement on the part of being a Musahar community. It's not a simple achievement. क्लास +2 पास करना बड़ी अचीवमेंट है. मैं देख रहा था एक जिले में एक छात्र था, उसने 10वीं पास करी और 57% उसके मार्क्स थे. वहाँ पे मीडिया वाले पहुँच गए माला लेकर. आप इस दौर में जहाँ पर 95% वालों को कोई पूछ नहीं रहा है डीयू में, वहाँ पे 57% वाले के घर मीडिया माला लेके पहुँच जा रही है. इसका मतलब something deep in the structure is there. That why does the media feel that that's a great achievement? Because they have undergone the history of subjugation for so long that even 57% is a great achievement for them. So we actually have to devise those tools that and identify those tools which are actually writing the history of our own domination. And in this context only, I think banking education, which Paulo Freire brings in, is a tool to understand our own oppression. It's not only the oppressor that is oppressing us. We are constantly trained in conceptual categories, trained in tools, trained in practices which are responsible for our own oppression. एंड सो बैंकिंग एजुकेशन को एक बार समझ लेना, उस पूरे प्रोसेस को, टीचर को आप देखें क्लास में 12वीं क्लास की स्थिति क्या है, 12वीं तक जो स्कूल एजुकेशन होता है, टीचर आता है, किताब खोलता है, फॉर्मल करिकुलम पहले से वहीं सब कुछ लिखा हुआ है जो डोमिनेंट सेक्शन चाहता है कि आप पढ़ें. हम सब यूनिवर्सिटी में आए और पहली बार देखे कि जो जाति प्रथा है वह दरअसल श्रम का विभाजन नहीं है. बाबा साहब ने कहा कि श्रमिकों का विभाजन है. And it was a paradigm shift in our understanding of caste. It was not a simple shift. And what a class 10th का एक चैप्टर है बिहार के सरकारी विद्यालय में, उसमें जाति प्रथा और अम्बेडकर करके एक चैप्टर है. उसमें मैं देखा कि चैप्टर में अभी भी
जो जाति प्रथा जो है, और जाति प्रथा और श्रम विभाजन, सॉरी ये चैप्टर का नाम है, अभी भी श्रम विभाजन ही पढ़ाया जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन दुनिया के तमाम समाजों में रहा है, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, हर जगह है। लेकिन यह तो ऐसा श्रम विभाजन है जहां आप जीवन भर बदल ही नहीं सकते हैं। तो यह तो श्रमिकों का विभाजन है। लेकिन फॉर्मल करिकुलम पहले से इस तरह से डिफाइंड है कि आप कुछ बदलाव कर नहीं पाएंगे। तो एक तो बेईमानी फॉर्मल करिकुलम के लेवल पर हो चुकी है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, लेकिन एक बेईमानी होती है टीचर खुद करता है, जो क्लासरूम में वह चाहे तो अपने अंदर एक उसका जो ऑटोनोमस स्पेस है, अ टीचर कैन क्लेम हिज ऑटोनोमस स्पेस और हर ऑटोनोमस स्पेस एंड देन गिव अस some ideas which are not falling in line with the formal curriculum, but he or she refuses to do that because he feel more blessed and more enriching in following the formal curriculum. और मैं देख रहा था टीचर को जहाँ जहाँ पर दलित शब्द आ रहा था, क्लासरूम में बैठ कर ऑब्जर्वेशन कर रहा था पीएचडी के लिए, जहाँ जहाँ पे दलित शब्द आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे जाति शब्द आ रहे थे, वहाँ पे टीचर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और जहाँ पे स्किल वर्ड आया वहाँ पे टीचर रुक गया और स्किल को समझाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ही इज मोर ऑफ अ मार्केट इंडिविजुअल देन अ सोशल इंडिविजुअल। वह जो है वह इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है और न्यू लिबरल ऑर्डर में उसमें इतना ट्रेंड है, उसे लगता है कि जाति दरअसल स्किल का डिवीजन है। उसे नहीं लगता है कि यह धरती पे इतनी क्रूर व्यवस्था है कि आपके जीवन से मरण तक का सारा सवाल इसी व्यवस्था से तय होता है। तो इतने बड़े सवाल को आप स्किल तक सीमित करके रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अभी भी जाति के जो मल्टी फेसेटेड डोमिनेटिंग सिस्टम है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो जात की वजह से होता है। And here only Paulo Freire brings us that this banking education where we have given enormous power to the teacher to decide everything that goes in the class, this is the root of our domination. We must not give this power to the teachers. And in contrast to this banking education, he gives us the idea of problem posing education, that we must not succumb to the ideas of banking education, and rather we must go ahead with problem posing education where we question everything that comes to us, where we question everything that determines our own subordination and operation. तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पे क्लास में बच्चे बोलें तो उनसे तो पूछा ही नहीं जाता है, उनसे पूरे एजुकेशन प्रोसेस में जब तक आप पूछेंगे नहीं, टीचर कोई डायलॉग नहीं कर रहा है। एंड दैट्स वेयर इंपॉर्टेंट डायलॉजिकल एजुकेशन की जो बात कही पॉलो फेरे ने, वह बोले कि इसका रास्ता यह है कि प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन हो और डायलॉजिकल एजुकेशन हो, डायलॉग हो। और डायलॉग जो है उससे ही जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंसेस है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उन टूल्स में जो हमारे ऑपरेशन के रिलेशन को हमेशा के लिए खत्म करेगा। हमारे ऑपरेशन के रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए बिना डायलॉग के असंभव नजर आता है। तो जब तक डायलॉग नहीं होगा, और डायलॉग होने से पहला शर्त यह है कि जब दो लोग बात करें तो उनके पीछे जो सोशल पावर है, जो हमारा आइडेंटिटी से आता है, वह पहले खत्म हो। यहाँ तो दो लोगों के बीच डिस्कशन होता है तो दो बातें होती नहीं है कि जाति का गुरूर और घमंड सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में डायलॉग संभव ही नहीं है। जो हैबरमास कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं और फिर वो देते हैं कॉन्सेप्ट कि हमारा लाइफ वर्ल्ड जो है, जहाँ से एक्सपीरियंसेस हम लोग आते हैं, वह पूरी तरह से कोलोनाइज्ड है। और ऐसे कोलोनाइज्ड लाइफ वर्ल्ड को ओवरकम करने के लिए हमें कम्युनिकेटिव एक्शन की जरूरत है। और उसी कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू हम लोग डायलॉजिकल एजुकेशन को भी समझ सकते हैं, जहाँ पे बिना कोई पूर्वाग्रह के, प्रेजुडिस के, स्टीरियोटाइपिंग के, बिना कोई आइडेंटिटी बेस्ड पावर रिलेशनशिप के हम एक इंसान के नाते से दूसरे इंसान से बात करें। और हमारे साथी ने कहा कि मार्क्सिज्म के साथ उनका एक रिश्ता था, सही बात है, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हैं मार्क्सिज्म से दूर भी जाने की। Paulo Freire has enough courage to go ahead of very formalized Marxism where economic infrastructure determines almost everything. And he says that logic of domination could not be understood only through the singular logic of class struggle. मार्क्स के फॉर्मल मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल एक बड़ा सवाल है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसे बनते हैं कि वह चीजें बदलाव आएंगी। But he doesn't follow this argument. He says that the domination has a multifaceted phase
And hence we need to engage the domination not only at the level of class struggle. And that's where some ideas of Indian thinkers actually strike to our imagination. And one thinker that comes first to me is Dr. Ram Manohar Lohia. He gave the idea of 7 revolutions, not only through class struggle. That's one part of the dehumanization that the oppressed community goes on in the society. We have much more relations of domination. We have much more nuanced version of our domination, where not only the class struggles determines everything, but there are relationships of domination between men and women, and to extend it, if we say, between almost all identities, if I say, which are not powerful, they are being subjugated. And then the class struggle, the caste struggle, the struggle for racism, to end the racism, the struggle to end the relationship of international capitalism, the struggle to go ahead with a society where we do not cherish this idea of bomb, the idea of हथियार, जहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप भी खत्म हो जाए। तो ये सब देखते हुए देखेंगे कि डोमिनेशन का कोई एक यूनिलीनियर फैसेट नहीं है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो पॉलो फ्रेरे एक लेयर दर लेयर उसको खोलने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि स्कूल एक ऐसा साइट है जहाँ पे इस तरह के पुराने डोमिनेशन के रिलेशनशिप को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि घर के अलावा एक ऐसा जगह जहाँ पे छात्र छात्राएं सबसे ज़्यादा वक्त बिताती हैं अपने पूरे जीवन काल में, वह स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो वह एक स्पेस देता है जहाँ पे हम लोग ओवरकम करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एंड हियर द टूल्स एक्चुअली कम्स। द सोसाइटी अपने आप में बहुत कंजर्वेटिवली काम करती है, लेकिन एजुकेशन के साथ जब उनका रिलेशनशिप एक बनता है तो वह कहीं ना कहीं उस कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक करता है जो समाज में व्याप्त है, क्लासरूम में व्याप्त है, जो साइलेंस का कल्चर है। तो उस कल्चर ऑफ साइलेंस को भी वह खत्म करने की वकालत करते हैं और उनका स्पष्ट मानना है पॉलो फ्रेरे का कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, जो हम सब यहाँ पे लगता है कि हम सब बहुत प्रोग्रेसिव एक सोसाइटी में एजुकेट हो रहे हैं कैंपस के अंदर, उसका एक शर्त अगर कहते हैं वो कि मोर ऑटोनोमस, गिव मोर ऑटोनॉमी टू द स्टूडेंट्स। अगर यह नहीं होता है तो एजुकेशन कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। और आज देखिए एनईपी में क्या है, ऑटोनॉमी तो है, लेकिन ऑटोनॉमी है कि आप फंड इकट्ठा करें, ऑटोनॉमी यह नहीं है कि आप सवाल करें, ऑटोनॉमी यह नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप को अपने टूल्स के हिसाब से शेप कर सकते हैं, यह नहीं ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी तो आया है, शब्द वही है, लेकिन अब ऑटोनॉमी यह है कि आप बाजार से कितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। यू आर ऑटोनोमस इनफ टू कंज्यूम एवरीथिंग फ्रॉम मार्केट, यू आर ऑटोनोमस, यू आर फ्री टू रेज फंड फॉर योर ओन एजुकेशन, but you are not autonomous to define your relations of operation. You are not autonomous enough to ask your teacher the question that disturbs the settled order. इस मामले में हम ऑटोनोमस नहीं है। तो इस मामले में हम देखते हैं कि पॉलो फ्रेरे की जो आइडिया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, वह आज की तारीख में खासकर एनईपी आने के बाद वह हाईली रेलेवेंट है हमारे सोसाइटी में। और वह यह भी कहते हैं कि जो ह्यूमनाइजेशन होगा, जो ह्यूमनाइजेशन आएगा, उसके पीछे ऑपरेस्ड कम्युनिटी का कोई भूमिका नहीं है, ऑपरेसर की कोई भूमिका नहीं है। जो ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस होगा वह पूरी तरह से ऑपरेस्ड कम्युनिटी के थ्रू ही होगा। जो कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि वर्कर्स ही रेवोल्यूशन ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कंडीशन को जिया है जो उन्हें ऑपरेट करता है। उन्होंने ऑपरेसर जो है वह तो डिह्यूमनाइज करता है दूसरे को, और इस प्रोसेस में खुद भी क्योंकि डिह्यूमनाइज होता है तो उसके पास उस टूल्स का, उस रिलेशन का कोई एक्सेस नहीं है जो उसके डिह्यूमनाइजेशन को रोक सके। इसीलिए डिह्यूमनाइजेशन प्रोसेस को अगर ह्यूमनाइजेशन में कन्वर्ट करना है तो पॉलो फ्रेरे के हिसाब से जो एजेंसीज हैं जो बदलाव लाएंगी वह जो है सबजुगेटेड मासेज हैं, ऑपरेस्ड ग्रुप हैं, उन्हीं के हिसाब से परिवर्तन होगा, वहीं परिवर्तन ला सकते हैं। और फिर वह लिबरेशन की बात करते हैं, कौन लिबरेशन ला सकता है कौन नहीं, वो सब कुछ है उसमें। वो बहुत जो कॉन्सेप्चुअल कैटेगरीज है, मैं कह रहा हूँ लिबरेशन का जो आइडिया है जो बहुत ही लिमिटेड था उसको उन्होंने ब्रॉडन करने की कोशिश की। डायलॉग का जो आइडिया था उसको उन्होंने ब्रॉडन करने की कोशिश की। जो प्रैक्टिस वर्ड है, जो थियरी और प्रैक्टिस को जोड़ते हैं, सिर्फ विचार नहीं, सिर्फ दर्शन नहीं, एक्शन भी कुछ होना चाहिए, और वह खुद जीवन भर उस एक्शन के प्रोसेस में रहे। उन्होंने अपने आप को सिर्फ विचार देने और बांटने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वह पूरे लिटरेसी प्रोग्राम को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते थे उस सोसाइटी के अंदर। और एक जो उनका मार्क्स के साथ जो डायलॉग है, तो
उसमें तो हुई बात कि क्लास स्ट्रगल के थ्रू सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि और जितने रिलेशनशिप ऑफ इनइक्वालिटी हैं, डोमिनेशन है, उनको भी समझने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने कहा कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस के साथ जो रिश्ता है उसको यूनिवर्सिटी स्पेस में एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। आज भी मैं देखता हूँ आत्मकथाओं का जो है एक अलग वो है क्षेत्र है, वह अभी भी मेनस्ट्रीम एकेडमिया का हिस्सा नहीं है। आज भी लोग डरते हैं कि आत्मकथाओं के ऊपर चर्चा होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो लिव्ड एक्सपीरियंस की बात पॉलो फेरे करते हैं उसमें आत्मकथाओं का अपना एक महत्वपूर्ण जगह है। और जब तक उस आत्मकथाओं को हम आज भी मेनस्ट्रीम एकेडमिया का हिस्सा नहीं बनाते हैं, मैं समझता हूँ हमारी जो अगली लड़ाई एकेडमिया में कम से कम होनी चाहिए पॉलो फेरे से प्रेरित होकर, वह यह हो कि कम से कम आत्मकथाओं के ऊपर सिर्फ हिंदी में नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के सेंटर्स पे नहीं, बल्कि सोशल साइंसेज के अंदर बातचीत हो, खुलकर बातचीत हो। और उसकी चिंता हम सबकी है, क्योंकि उसके थ्रू जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा तैयार होगा, वही ऑपरेशन और ऑपरेस के रिलेशनशिप को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत कम से कम एकेडमिया के अंदर तो रखेगा। बहुत शुक्रिया, आप सबने सुना बहुत धैर्य के साथ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, sir, for telling us so much in detail. And we can consider, I think, Paul Freire under neo-Marxism because he adds new touches to Marxism. So, अब अगर कोई बोलना चाहता हो तो, प्लीज।